नए भारत की नई तस्वीर बनाने को, जिसे संभव करेगा हर भारत का बच्चा बच्चा, भारत को नई पहचान दिलाने को। आज जहां इनोवेटिव आइडियाज का जमाना बताया जाता है, जिसके चलते भारत के इसरो द्वारा पूर्व में हमें काफी महत्वपूर्ण योगदान मिला है। और अगर बात की जाए भारत के उज्जवल भविष्य यानी भारत के नौजवान पीढ़ियों की, जो कि स्कूली स्तर पर भी काफी बड़े इनोवेटिव आइडियाज के साथ बाहर आ रहे हैं, ऐसे में नेहरू साइंस सेंटर वेस्टर्न जोन द्वारा आयोजित इनोवेशन फेस्टिवल में इनोवेटिव आइडियाज द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट्स जैसे पेपर मैश कंटेनर फॉर प्लांटेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंटी मिल्क स्पिलिंग यूटेंसिल्स, मल्टीपर्पज फार्मिंग साइकिल आदि प्रोजेक्ट्स का डिस्प्ले किया गया, ताकि भारत के उज्जवल भविष्य को प्लेटफॉर्म दिए जा सके। और इस इनोवेशन फेस्टिवल के दौरान 5 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, राजस्थान और महाराष्ट्र से स्कूलों का पार्टिसिपेशन देखने को मिला, जिसका आज यानी 3 फरवरी 2023 को वैलेडिक्टरी फंक्शन द्वारा समापन किया गया। और विभिन्न राज्यों से आए स्कूल और उनके बच्चों को उनके प्रोजेक्ट्स का आकलन करने के बाद पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया। तो ऐसे में आइए आपको सीधा ले चलते हैं नेहरू साइंस सेंटर में और बातचीत करते हैं वहां मौजूद डिग्नेटरीज और स्कूल के बच्चों से। Sir, of course, this is an initiative from the Nehru Science Center about the innovative ideas. Students are coming up from the 5 states. So, what success rate in terms of innovation and the new creative ideas from the student do you see in the upcoming future of India? There is no set percentage of as such. What happens, we are inviting, these are already selected projects. There are some innovative components. The best part of this, what I personally feel is, at least students have opened their mind. For example, there is one project like when you put the milk on, say, flame, and if you forget, it will spill over. So how to get rid of that? And it happens. So they are trying to solve that. Anti-collision device, unmanned railway crossings, how you can protect, because life is precious. I think one example is given on food security. So how you can avoid that. In terms of success, I should say earlier the project used to be very fundamental, very basics, maybe on thermocouple. But nowadays you will find people are using Arduino, the latest technology, sensors. So they are ready, trying to find out solutions which are common day problems. Innovation which new talents are showcasing. Sir, as you are from Nehru Planetarium, a director, how Nehru Planetarium is looking at this innovative event? You see, I would first like to say that any place whenever there are these students project, they are very exciting because every time the student comes up with the new ideas. So when I saw this project, because I've been regularly visiting Nehru Science Center, and Nehru Science Center is doing fantastic work in promoting the science among general people, among masses. And so my hearty congratulations to Nehru Science Center for organizing this exhibition. Now, having said that, I would like to tell you that some of the projects which I found were really fantastic, and more interestingly, I found that the way students are answering questions is phenomenal. It is a time of artificial intelligence and more innovation through the scientific ideas. Sir, how you are seeing the generation responding to these kind of innovations, sir? I would say that many years ago, almost nearly 50 years ago, I as a student made some electronic piano in my college days as a project, and today I see people are making Arduino based science project which can be controlled with your mobile phone. So it's many leaps ahead of the time which I had spent in my school days. So it's really amazing, challenging, and really it is telling you that the country is doing great with the youngsters. So what kind of things have been changing during this span of time, and what burden should be lessened and more innovation should come out with the upcoming generation? I think every child, whether the motivation of coming to such exhibition should not necessarily be the winning. Of course, winning is there, but the participation is more important. And other thing which I would like to suggest to all the students is that having come here, you should go and visit, you should have visited all the stalls which are there. Students should also check up what they should do in order to improve their projects. आज इन्होंने यहाँ पे अपने इनोवेशन आइडियाज का डिस्प्ले किया है, इसको यहीं तक सीमित रखना है या आपकी तरफ से कोई या सरकारों की तरफ से कोई इस तरीके का प्रयत्न किया जाएगा कि ये आइडियाज हकीकत में बदलें? ऐसे अपॉर्चुनिटीज बच्चों के पास रहता है। जैसे यहाँ से जो बेस्ट प्रोजेक्ट होते हैं, अभी ये एक्चुअली ये जोनल लेवल पे टॉप लेवल है अभी तक, पर कभी कभी ऐसे अपॉर्चुनिटीज आते हैं। जैसे हमारे यहाँ से जो सिलेक्ट होते हैं, तो एक इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर होता है, तो उसमें से हमसे जो प्रोजेक्ट मांगे जाते हैं हर साल, उनको हम वहाँ पे रिकमेंड करने वाले हैं। तो वहाँ पे भी अगर उनका सक्सेस अच्छा है तो वो इंटरनेशनल तक भी जा सकते हैं। Our school name is SS High School and Junior
Junior College, which is in Seawoods, Navi Mumbai, Maharashtra. Our project name is SARF. SARF means Solar Anti-Accidental Automatized Robotic Vehicle. Basically, our vehicle works on solar energy as well as on electrical energy, as it is a renewable source of energy. Our vehicle avoids accidents everywhere. Working of our vehicle is totally based on software. Our vehicle also works as a robot and it is a pollution free. सर मेरा नाम अक्षत वैष्णव है और मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ और मैं गवर्नमेंट स्कूल का छात्र हूँ। और गवर्नमेंट स्कूल में जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं वो ऐसे होते हैं आज के डेट में कि यहाँ हम नेशनल लेवल तक भी आ सकते हैं। इसको एक इनोवेशन मेला बोलेंगे, तो इस इनोवेशन मेला में किस तरीके का आपका प्रोजेक्ट था, क्या थीम था और किस तरीके से आपको नेहरू साइंस एग्जीबिशन जो सेंटर है सपोर्ट मिला? जो हमारे प्रोजेक्ट का नाम है वो रिसर्कुलेशन ऑफ फ्लू डस्ट इनटू ब्लास्ट फर्नेस का है। तो ब्लास्ट फर्नेस से हम जो सोचते हैं सबसे पहले वो एशिया का दूसरे सबसे बड़ा स्टील प्लांट, वहाँ सबसे ज्यादा ब्लास्ट फर्नेस है। तो हमने वहाँ जो शैक्षणिक भ्रमण के लिए हमारी जो स्कूल की तरफ से हमें ले जाया गया था तो वहाँ हमने ब्लास्ट फर्नेस के बारे में जाना। तो सर इस प्रोजेक्ट को फिर हमने तैयार किया और ब्लास्ट फर्नेस से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसको वेस्ट के रूप में फेंक देती है, लेकिन हम उसी वेस्ट का रीयूज करके आयरन का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं और जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होने की जो है संभावनाएं बढ़ सकती हैं। माय नेम इज संभोजन, मैं छतरपुर एमपी से हूँ। मेरे स्कूल का नाम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल एक्सीलेंस नंबर 1 है। तो इस नेहरू सेंटर द्वारा जो ये इनोवेटिव फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, तो इसमें क्या आपका योगदान है, क्या प्रोजेक्ट है आपका? सर जिस तरह अपन लोग विंडोज़ को यूज़ करते हैं, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ 10 या विंडोज़ 11, उसी के बेसिस पे हम लोगों ने एक खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है। उसमें अपन वॉइस के थ्रू कोई भी कमांड देंगे तो वो उसको ऑपरेट करके अपन को उसका सॉल्यूशन ला के देगा। इसमें हम लोगों ने एक ओपन AI का यूज किया है, जो हम लोगों ने खुद AI बनाया है। उस AI में क्या कहलाता है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों वर्क करता है। ऑफलाइन इस तरह की कि उसके अंदर एक मेमोरी होती है खुद की, जैसे ह्यूमन के अंदर होती है। उस मेमोरी का यूज करके उसको एनालाइज करके वो अपने न्यू क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड करता है। अदरवाइज उसमें अगर उसका आंसर नहीं है तो गूगल पर जाकर उससे की वेबसाइट को एनालाइज करता है, उसमें से जो एक्यूरेट आंसर होता है उसको फाइंड करके देता है। मेरा नाम विघ्नेश शेट्टी है और ये माधव सिनारी। हम गोवा में डॉक्टर KB हेडगेवार विद्या मंदिर से है। हमारा प्रोजेक्ट का नाम है रोड मित्र, जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित पोथोल डिटेक्शन ऐप है, जिससे आप रास्ते पे जो गड्ढे होते हैं ना वो आप डिटेक्ट कर सकते हैं और गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। तो हमने ये ऐप बनाया है और ये ऐप कोई भी डाउनलोड कर सकता है और गड्ढे रिपोर्ट कर सकता है।